Now we will start our next chapter, chapter number 5th, that is periodic classification. Periodic classification of elements. Okay, so you know that various elements are exist. Okay, various elements are exist. How? The classification of these elements. Okay, based on their nature, based on their properties, वो कैसे किया गया. Okay, or what is the contribution of different scientists in the chemistry to arrange these elements, okay, to classify these elements as per their nature, as per their behavior, as per their physical and chemical properties. Okay, that we are going to study in this chapter. That is what periodic classification of elements. Okay, so in a ninth standard, okay, so you have learned about matter around us is present in the form of elements. बराबर है. जो matter जो present है in atmosphere, in surrounding, in the universe, that is present in the form of elements. Okay, वो किसके form में है? Elements के form में है. Elements के form में available है. All the matters are exist in the form of elements. कोई भी अगर metal ले लो, okay, so metal ले लो, non metal ले लो, okay, everything, okay, that is present in the form of elements. Okay, so compounds and mixtures, and the elements contain atom of only one type. Okay, so do you know how many elements are known till date? कितने elements पता है हमें till date? So there are 118 elements are known. 118, 118 elements are known to us. Okay, so 118 elements are known to us. Okay, all these have a different properties. बराबर है. As we are saying ये different different elements है तो सबकी property अलग अलग होगी. So they will have a different properties. Okay, they will have different properties. All these have different properties. Out of these 118, only 98 are naturally occurring. Okay, उसमें से जो 98 है वो क्या है? Naturally occurring है. Out of this 118, 98 elements are naturally, okay, these are naturally occurring. Okay, बाकी हो सकता है man made हो सकते हैं. Okay, but these 98 are naturally occurring, naturally occurring elements. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. तो जब initially, right now we have periodic table, okay, अभी हमारे पास periodic table हम लोग आसानी से देख सकते, but initially when there was no any periodic table, when the properties of most of the elements were it was unknown, so that time it was very difficult to arrange this, okay, in the or to classify this in proper manner. Okay, बहुत difficult था उस time पे. So making order out of chaos, early attempts at the classification of the elements. Okay, तो फिर starting में बहुत ही it was difficult था. Okay, it was very difficult to arrange it. Whenever if you are visiting, अगर आप कहीं किसी शॉप में जाते हो, okay, मान लो ग्रोसरी शॉप में गए, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? लाइक सपोज जो सोप, बराबर है, सोप का सेक्शन अलग होता है, बराबर है, पाउडर का सेक्शन अलग होता है, ऑयल का सेक्शन अलग होता है, बराबर, क्लासिफिकेशन किया गया है ना, बराबर है, क्लासिफिकेशन किया गया है कि किसके लिए क्लासिफिकेशन किया गया है. इफ यू आर विजिटिंग एनी ग्रोसरी शॉप, ओके, so you will observe this classification is done properly. Okay, soaps are kept at particular location, यानी एक जगह पे रखते हैं, बराबर है, उसके बाद में ऑयल एक जगह पे रखते हैं, ऐसा नहीं कि सारे मिक्स कर दिए, बराबर है ना. ये क्यों होता है? दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो क्या होना चाहिए? क्लासिफिकेशन दिखना चाहिए दोनों में. हम लोग कभी ऐसे देखा है कि शॉप में पूरा मिक्स रखा हुआ है, आप ले लो जो चाहिए वो, ऐसा है, ऐसा होता है क्या? नहीं. So generally they are classified. Okay, they are classified based on their nature. Okay, so when you are visiting any grocery shop, you will observe that soap will be arranged in a particular section. Okay, और उसको देखोगे तो जो soap है, जैसे the soap for soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. So even among the soap, bathing soaps are stacked separately. उसमें भी क्या करते हैं? जो bathing soap है, the bathing soap,
वो एक जगह पे स्टैक करके रखते हैं, बराबर है। वॉशिंग सोप एक जगह पे स्टैक करके रखते हैं। ये क्यों है? ये क्लासिफाई किया है हमने हमने उनको उनको क्या किया है? क्लासिफाई किया है। इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है, इतने सारे सब्सटेंसेस है, तो उसको हम लोग इजीली पिकअप कर सकते हैं, बराबर है ना। दैट्स व्हाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स वाज वेरी नेसेसरी। ओके, बहुत ही नेसेसरी था क्लासिफिकेशन करना उनको, उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, उनके मास के अकॉर्डिंगली, बराबर है, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली उनको अरेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, एंड दैट क्लासिफिकेशन वाज done by, or most of the scientists have, they have given their contribution in their classification. Okay, so we'll see what are the contribution. So the earliest attempts to classify the element resulted in a grouping the known elements as metals and non metals. So earlier जो contribution जिन्होंने दिया, तो उन्होंने किसमें ग्रुप किया? पहले कि मेटल्स कौन से हैं। ओके, जो एलिमेंट्स है उनमें से मेटल्स कौन से हैं और उनमें से नॉन मेटल्स कौन से हैं, ये वाला क्लासिफाई किया। बट this classification was limited only to metals and non-metals. So we cannot say, because most of the metals they exhibit its nature, maybe metal हो सकते हैं, non metal हो सकते हैं, metalloid हो सकते हैं, और different kinds of हो सकते हैं. So later further classification were tried out as our knowledge of element and their properties increased. Okay, so earlier most of the properties of about the elements was unknown. Okay, ज्यादा properties पता नहीं थी elements के बारे में, and that's why it was very difficult task for the scientists to arrange this in a classify this in a proper manner. Now we'll discuss one by one the contribution of different scientists. So very first scientist who had contributed, okay, that is called as Doberan's triads. Okay, so we'll write down. It's Doberan's triads. TRIADS triads. Okay, so TRIADS triads. Okay, उसने क्या classify किया? Okay, so in year 1817 this scientist John, okay, John Wolfgang Doberan, a German chemist, he was a German chemist. Okay, he arranged, okay, he tried to arrange the elements with similar properties into group. उसने क्या किया कि जो similar property जो show कर रहे, similar properties जो show कर रहे, okay, similar properties जो show कर रहे, क्या elements those were showing the similar properties, he tried to arrange this in a triads. What is the meaning of triads? In a group of three, in a group of three. Okay, so he identified some groups having three elements each. तो उन्होंने क्या उन्होंने क्या किया कि ग्रुप बनाया। ओके, ग्रुप बनाया, थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ओके, थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, एंड दैट्स व्हाई the name is given triads. Okay, TRIADS. Okay, three elements in a group, three elements in a group उन्होंने अरेंज किया एक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स, that's why the name is given triads. Okay, so he showed that when three elements in a triad were written in order of increasing atomic masses, अगर उनको हम लोग उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अगर लिखेंगे, so the atomic mass of middle element was roughly the average of atomic masses of other two elements. तो क्या उसने बताया कि तीन एलिमेंट से, बराबर है, तीन एलिमेंट से, ओके, तीन एलिमेंट से, अगर मैं यहाँ पे ऐसे चार्ट बनाता हूँ, ओके, तो 1 2 एंड 3, थ्री एलिमेंट से फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट, उनके एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास, ओके, मैं आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर एटॉमिक मास, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास प्लस थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकालो, दैट विल बी द एवरेज मास ऑफ सेकंड, द मिडल एलिमेंट। ओके, तो देखेंगे हम लोग कैसे किया तो उन्होंने। ओके,
So for example, take the triad consisting of lithium, sodium and potassium. Lithium, okay, lithium, then sodium Na, and potassium, that is K. Okay, so lithium, sodium and the potassium विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास है 6.9. आप देख सकते हो इसका एटॉमिक मास है 6.9 लिथियम का. ओके, सोडियम का है 23, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39. ओके, आप देख सकते हो 6.9 इज फॉर लिथियम. सोडियम के लिए एटॉमिक मास कितना है? सोडियम के लिए एटॉमिक मास कितना है? 23. एंड पोटेशियम का मास कितना है? एटॉमिक मास 23. तो क्या ट्रायड दिया उन्होंने ये ट्रायड दिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उसका एवरेज लो. चलो एवरेज लेते हैं हम लोग इसका. ये देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट प्लस थर्ड एलिमेंट. ओके, उसका एवरेज यानी दो एलिमेंट से एवरेज यानी 2 हो जाएगा. देखो फर्स्ट एलिमेंट का कितना है 6.9. ओके, 6.9 प्लस, ओके 6.9 है. ओके, डायरेक्टली हम लोग उसको 7 भी लिख सकते. और थर्ड का कितना है? इट इज 39 एंड डिवाइडेड बाय 2. आप देख सकते हो. ओके, सो 39 66.9 इज अराउंड 7. तो ये हो गया. ओके, ये 46 हो गया और 46 का हाफ कितना हो गया? 23. देखो कितना आया, दैट इज नियर अबाउट. ओके, दैट इज नियर अबाउट 23 आया. 23 एटॉमिक मास 23. ओके, नियर अबाउट 23. 23 is what atomic mass of the element which is present in the middle of this triads. Okay, तो ये नाम क्यों दिया ट्रायड्स? ट्रायड्स इट्स फॉर थ्री एलिमेंट्स को उन्होंने ऐसे ग्रुप में बनाया. ओके, और उसने क्या बोला कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनका एवरेज करने के बाद जो मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका हमें एटॉमिक मास मिलेगा. सो विल सी वेदर इज इट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स और नॉट. ओके, सो हाउ डज दिस कंपेयर. हाँ, सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास? तो देखा हम लोगों ने 23 आया. सो गिवन बिलो द टेबल दिया हुआ है are some groups of 3 elements. These elements are arranged downwards in order of increasing atomic masses. Can you find out which of these groups form this triads? Okay, तो आप देखो टेबल नंबर 5.1. सब लोगों के पास बुक है? बिकॉज ये लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. यू open page number 80 and look at the table number 5.1. okay, look at the table number 5.1. look at the table number 5.1. बुक है, बुक लिया सब लोगों ने? लुक एट द टेबल नंबर 5.1. क्या दिया गया है उसमें? ग्रुप ए एलिमेंट. ओके, क्या दिया गया है? ग्रुप ए एलिमेंट्स. ग्रुप ए में कौन से एलिमेंट है? ओके, ग्रुप ए में एलिमेंट्स है और उसका क्या है? एटॉमिक मास. उसका क्या है? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास लिया गया है, बराबर है. देन ग्रुप बी. ओके, so now group B and its atomic mass. okay, shortcut में लिखता हूं मैं AM, atomic mass. then group C and its atomic mass. okay, चलो देखते हैं हम लोग ग्रुप A में कौन से एलिमेंट्स है. N नाइट्रोजन, फॉस्फर, एस्टेनाइट, AS. ओके, तो देखो उनके एटॉमिक मास कितना है? 14, 31 and 74.9. then this calcium, strontium, this 40.1. okay, 40.1, 87.6 and 137.3. okay, दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इसका एटॉमिक मास है 35.5 एंड 79.9 और 126.9. look at this, I have written right now. okay, टेबल नंबर 5.1 लिखा मैंने यहाँ पे. तो 3 ग्रुप्स बनाया उन्होंने, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. ग्रुप ए में ये देखो ये एलिमेंट्स है 1 2 3. ओके, NPAS. ओके, उसका एटॉमिक मास देखो. ओके, नाउ यू हैव टू चेक कि इन ग्रुप में से ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में से कौन से ग्रुप है जो क्या फॉर्म कर रहे हैं? उसको क्या फॉर्म कर रहे हैं? दिस ट्राइड्स दे आर फॉर्मिंग देयर ट्राइड्स. आप देख सकते हो, इसको ऐड करो. ओके, 14 प्लस इसको ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, आंसर 31 नहीं आएगा. बट if you will add 40, okay, 40,
एंड दिस 137.3 इन दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड करोगे, जैसे ये फॉर्मूला लगाया मैंने, फर्स्ट एंड थर्ड एंड डिवाइडेड बाय 2, ओके, एवरेज निकालना है उसका। सो द आंसर विल कम लाइक दिस, आंसर यही आएगा, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली। इसको और इसको ऐड करने के बाद इसका आंसर ये आएगा, बट हियर इन द फर्स्ट ग्रुप द आंसर विल नॉट नियर अबाउट 31. So what you will observe, you will find that the group B and C will form these triads, but not group A. Okay, so it could identify only 3 triads from the elements known at that time, and hence the system of classification into triads was not found useful. तो उसने जो triads जो found किया, तो देखो ये वाला एक triad form कर रहा है, lithium, सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा ट्रायड है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड दिस Ba, and third triad is a chlorine, bromine and iodine. Okay, तो सिर्फ यही 3 triads वो form कर सका. Okay, so that was the limitations of this Doberan's triads. Okay, तो उसने जो concept दिया, conceptual जो thing दिया, that सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले उसने अरेंज किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट लिया उसने, जैसे NPAS, और उसने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है उसका एवरेज लेने के बाद आपको मिडल वाले एलिमेंट का क्या मिलेगा, आपको एटॉमिक मास मिलेगा। तो ये एप्लीकेबल इसके लिए नहीं है, ये एप्लीकेबल किसके लिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, बराबर है। और हमने ये देखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में भी ये क्या है, एप्लीकेबल है। सो उसने जो फॉर्म किया, तो ये 3 ग्रुप्स ऐसे फॉर्म किया उसने, बराबर है, इनके लिए। सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ दिस डोबेरनस ट्रायड्स। क्या लिमिटेशन है उसका, कि ये एप्लीकेबल नहीं था। ये जो कंसेप्ट उसने जो दिया कि फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का एवरेज निकालना है, तो हमें मिडल वाले जो एलिमेंट है विच इज शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, ओके, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसने एटॉमिक मास को, देखो 14, 31 एंड 74.9, these are the elements which are showing the similar properties, these are the elements which are showing the similar properties। इनको भी देखो अरेंज किस में किया उन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया। ये देखो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, एंड उसको भी उसने क्या किया, अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। और उसने ये बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, उन दोनों का एवरेज लेके आप क्या करो, मिडल वाले का एटॉमिक मास निकालो। तो ये एप्लीकेबल कुछ एलिमेंट के लिए था, बट नॉट फॉर ऑल द एलिमेंट्स। देख सकते हो आप, ये इसमें फर्स्ट वाले में एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड और थर्ड के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के लिए एप्लीकेबल है। तो जो ट्रायड्स उसने बनाया, तो ओनली दिस ट्रायड ही हैज पुट फॉरवर्ड, ओके, बाकी के इसके लिए उसने नहीं बना पाया। एंड दैट टाइम the elements, okay, because right now 118 elements are known to us। उस टाइम पे in around 19 in 1817, okay, in 1817 118 elements were not known, okay। उस टाइम पे 118 एलिमेंट उस टाइम पे पता नहीं थे, बहुत ही कम एलिमेंट्स पता थे। उसमें से भी उन्होंने कुछ सिलेक्ट किए, और उसको सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ट्रायड्स बनाया, बट इट इज नॉट applicable and it was difficult to classify, okay। So hence the system of classification into triads was not found useful, so that's why the system was not useful, okay।